O lenge touch dile shopa dile ani lenge taringi nimo ditanga du duchine namba zo lenge kizing koni nyendu siye na hakodo ro tiringi mundu nyendu de karime o dindi roji an tiringi ndu dinge duste da nyendu tanda duchine namba zo sida ro andu tiringa zo pagela duchine seshe chiga dore kembe laore ta kembe mesta seshe chiga dorwa dinde marista ondi girwa 미만초라 세세 지가 조랭 아주 톰라로 제자 넘버 쪽이 위도디 권니 슈다 뿌라 시로지로 디나 갸가 유미 아주 카니 숨스케트나레 퓨리카 체체드네로 코란조기 sembanal로라 소와지 칸데 유메디다 나란조기 실루 벨루메 빈다 상마 아주 칸데 소와 칸데 소원nem보 칸데 때 유메디 넘버 쪽디 닌두나 통루레 안nem보 닌두디 무투니 시로치 뱃코랄 타마다 시로치로 아니 스킵 마치로치 야야 아니 코니슈알라 채널라 녜가 지니도 싱에 사와이나 subscribe 인짐주 치로치 like 인짐주 치로치 로야 안 쉐어링 아니 모두 비디오 디 시로치로 갑도 아주 톰라 두치니 제용 아주 녜도 두치니 고주레 야 오케이 남시 드링 약고도 스타 딱딱거라 갈라올라서 나 주경 숙마기 시위에서로 니마 차오레 대장디 차와 속에 차와로 갸소 남시 빼하고도 야안 넘버 2 갑도 파게 제고 바이 시기시 치로치 다음에 믹당 고페징 다부 잠레 시데 데베 진어 고자 잠게 쳐부쳐라 고자 왕도 다음에 고네 하리 디가 시베 콤데기 레게디 본데 최송 다 프로라 산에 주로 페메 냠로 토네 고지라 페베 하리 고자 쳐라 해바다 탐지 요메베 디가 페베 냠레 군디겐데 고데 넘버 해가다 해가나시 시작하기 내에 미나 남바다 미마 용랑에기 산에 슈르다 페메 삽슈데 토지나슈기요 지다 미마 렌제 타메 켄세데 딜로 지다 이베기 테 이삽게니 다람틀라 택제 투라 카운도 자가르기 로테 카진기 제고치 나로라 지로 고다 잠게 체부초기 잠다니제 세와당 람드 칼럼 상보디 수드식다 파스 그나메 디 나로라 만제기 다오 야마르기 수지 겐베 토네 닝도 수드 닝도 까자 나직 딕피아 코나베기 초지 제베 디 잠블랭기 산유 달람카레 해가나시 지도기 다야나로도자 tamati same khense yeliya dilelha sanju dalam ka khashe de dagana shi chedo dagya nang lo la rangni khangsa keda chebo ye mina khashe ki suse the nyanda ki chedu khomsa chola theme shuada dagana shi shime könje chebo dela ngajwe ko ne sem kyo ko ji da yi lo ma chom ko ki ne da di chowa same ki khese re Digi legi ki japyo chendo tane manzi ki legi di thone sargu bale chido ki dalam ki thola khomsa cho ki lomare jeju ba thida munda ki sem na lola lobam da sem jo ke yi kyo ke ne se chwa di thola manzi la khomsa cho la sargu ba dalam kyore sanju cho ne to 공다 토대라니 주고예라니 도대야 레게데 땀래 대가나시 레게 디토네 가리슈데 조스나 마음바 다친제나 치자고 가리지요이나 맞아 베미만에 dokta 찍딩오네 공사 졸라 나면 수다치기 때문에 쉬두고 말해 맞아 비 파치도 오게다 걔나 타치도 샤기 매라네 담제 때문에 다리 니모네 어떻게 샤고 그래라는 게 챙겨요
지당 지난 공사 정부 공사 정대 정부초 미자 헬보 자물랭기 시대기 뒤에래 최로 펜즈기 대람 대가면시 도와미 리도 전제 탐제기 제도 살레나와 세년다 디 자우 정말기 남양 얘기 매버서 두고 말해 대성사 다리 얘기 뒤가 패배 상말로 다리 녀mol에 똑같이 찍지 체네 아니 내게 강대적인 양신아이디 나 개척을 통고도 나라이 붙이나 근데 방가 들어나 방지 사와다 내가 보수에 저도 주에 돌아 보수에 디다냠도 비기 쉬어라 배다 가리 배워이나 여러 성제 더 되게 전에 남주 대에 배다 배워서 비기 쉬고 We want justice. We want justice. Dalai Lama. Media must apologize. Media must apologize. Dalai Lama. We stand with Dalai Lama. We stand with Dalai Lama. We stand with Dalai Lama. Media.
क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? संगठन यहाँ पुरवाला हो गया, बूपुर हो गया, और उसी तरह से यहाँ के जो सेटलमेंट ऑफिसेज हैं और उसी तरह से स्टोन, कमरो, सारे क्षेत्र से जितने भी यहाँ पर हमारे तिब्बती बंधु और परमपावन दलाई लामा जी के अन्य अनुयायियाँ यहाँ पर पधारे हैं, सबको मैं एक तरह से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यह आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं, शायद हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो जब से हम निर्वासन में आए हैं तब से आज पहली बार इस तरह के कार्यक्रम को हमें आयोजन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हम किसी क्या कहते हैं एक खुशी या किसी एक उल्लास के आधार पर आयोजन नहीं कर रहे हैं। बड़े दुख और बड़ी दिल में क्षति पहुंची है, हमारे हृदय पे क्षति पहुंची है, और उसे एक तरह से सह ना पाते हुए उसे एक तरह से दुनिया के सामने उजागर करने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसलिए जो आयोजन करने वाले सभी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज एकाएक इस तरह के कार्यक्रम क्या हुआ है, क्या हो गया है, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े शहर में नहीं हैं, छोटे से शहर में रह रहे हैं और इससे जुड़ते हुए सुदूर इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा हम अपने दिनचर्या में ही व्यस्त रहते हैं। तो लोगों के मन में होगा कि ये आज किस संदर्भ में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यह अगर आपके समक्ष हम बहुत ही सरलता से रखें तो ये एक तरह से 28 फरवरी, इस वर्ष के 28 फरवरी एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, धर्मशाला में। तो उस कार्यक्रम के एक छोटा सा क्लिप जो है उसे विदेशी पत्रकार या फिर अन्य जैसे CNN है, उन लोगों ने उठाकर उसे एक तरह से साझा किया और अपने मंच पर उसे दिखाया।
जिसमें ऐसा दर्शाया गया कि परम पावन दलाई लामा जी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी ये जो पत्रकार हैं या जितने भी ये जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इस चीज़ को पुष्टि करने की उन्होंने एक तरह से कोशिश नहीं किया, उस तरफ उन्होंने थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दिया कि ये वाकई में हुआ क्या है। एक सनसनी के तौर पर उन्होंने उठाकर दुनिया के सामने रख दिया, जिस कारण परम पावन दलाई लामा जी के लिए ये जो बातें हैं बहुत ही एक क्योंकि वह एक तरह से हमारे जो मानव जीवन की जो क्रिया है उससे भिन्न है, उससे ऊपर है, उनको कुछ नहीं इससे फर्क पड़ता। लेकिन हम जैसे तिब्बती, हम जैसे उनके अनुयायी, उनको अच्छा नहीं लगा, हमें ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा, क्योंकि एक तरह से उसको पुष्टि करनी चाहिए थी, उसके सत्य के जो है स्थापित करते हुए फिर अगर दिखाए, और उसके साथ साथ हमारी जो क्या प्रथा है, हमारी क्या रीत है, हमारी क्या रिवाज है, उन चीज़ों को समझते हुए अगर इतने बड़े मंच में परम पावन दलाई लामा जी की जो क्लिपिंग है उसे दिखाते, तो हम कहते कि हाँ आप लोगों ने ठीक तरह से दिखाया है। लेकिन उसे ना करते हुए उसे एक सनसनी खेज के रूप में, उसे एक अश्लील दृश्य के रूप में दिखाकर उसने ये जो विशेष रूप से हमारे इधर इस क्षेत्र में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, NDTV है, इन्होंने हमारे दिल को बहुत आघात पहुंचाया है, हमें आहत किया है। उसे एक तरह से प्रदर्शित करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। अब सवाल उठता है कि कार्यक्रम जो है परम पावन दलाई लामा जी के साथ, पावन दलाई लामा जी के प्रति उनका एक तरह से रवैया रहा है, उनको जितने भी नीचे दिखा सके वो दिखाने का प्रयास करते रहे, अभी नहीं बल्कि जब से 1959 से हम यहाँ पर निवासन में आए तब से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, जैसे ये स्रोत हमें पता चला, तो अब सवाल ये उठता है कि जितने भी जो यूट्यूबर कह लीजिए या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लीजिए, सोशल मीडिया मोंगर कह लीजिए या हंगर कह लीजिए, उन्होंने एक तरह से इसे दिखाकर उन्होंने चीनी प्रशासन के जो एक तरह से उद्देश्य था उसे पूर्ति करने का एक तरह से उन्होंने सहयोग दिया है। तो इसलिए आज की जो ये कार्यक्रम है उसके माध्यम से यहाँ पर है, उसी तरह पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ तिब्बती बंधुगण और तिब्बती परम पावन दलाई लामा जी के अनुयायी रह रहे हैं, वहाँ पर अपनी जो है रोष प्रकट कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से और एक नियम के अनुसार। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, हर जगह पर इस विषय को लेकर जितने भी परम पावन दलाई लामा जी के अनुयायी हैं वो अपने रोष प्रकट कर रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लद्दाख लेह में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसी तरह से अरुणाचल में तवांग में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ, इस तरह से पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हुआ है। तो मूल कहने की बात यह है कि जितने भी जो पत्रकार हैं, जितने भी जो न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी जो अखबारें हैं, वह न्यूज़ दिखाना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। लेकिन जब वो कोई भी न्यूज़ दिखाते हैं, उस न्यूज़ को वो सबसे पहले उसको सत्य स्थापित करें, उसकी पुष्टि करें, वो कोई सत्य के आधारित है या नहीं, ये सब पुष्टि करने के बाद ही फिर अपने जो चैनल है उस पर साझा करें। ऐसे हम लोगों का एक तरह से निवेदन है हम लोगों का, और साथ ही में पूरी जो अनुयायी हैं परम पावन जी के और यहाँ पर जितने भी उपस्थित है, सबका कहना है कि जितने भी इन चैनलों या जितने भी जो न्यूज़ मीडिया वाले हैं जिन्होंने इस तरह की जो क्रिया किया है, वह अपनी ओर से एक तरह से क्षमा याचना दें और अपनी जो है वो भी सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना दें, ताकि इस मसले का एक तरह से वहीं पर हल हो जाए। तो इसलिए कहना ये चाहेंगे कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज की इस कड़ी से, इस एपिसोड से, इस इंसिडेंट से जितने भी तिब्बती बंधुगण हैं, जितने भी परम पावन दलाई लामा जी के अनुयायी हैं, उनके दिल में गहरा आघात हुआ है, क्षति पहुंचा है। और हमारे में कहावत है, आदमी चले जाते हैं, इंसान गुजर जाते हैं, लेकिन बातें रह जाती है। जैसे कि पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ खड़े रहते हैं, और जब तक ये हमारी जो परम पावन दलाई लामा जी के जो उनके अनुयायी के जो समुदाय हैं, तिब्बती बंधुगण हैं, उनकी जो वंशज है, जब तक वह रहेगा तब तक
ये जो जिन जिन लोगों ने ये करतूत की है, जिन जिन न्यूज़ चैनलों ने ये करतूत की है, भले ही हम कोई एक तरह से हिंसक रूप से कुछ ना कहे, कुछ करने की हमारी कोई मंशा भी नहीं है, लेकिन जो दिल में चोट पहुंची है वह कभी भी नहीं मिट पाएगा, वह हमेशा हमारे दिल के अंदर रहेगा। इसलिए मैं पुनः यहाँ से आह्वान करना चाहूँगा कि जितनी भी ये न्यूज़ चैनल में काम करने वाले, जितनी भी ये न्यूज़ चैनल ने जो ये हरकत की है, वह सार्वजनिक तौर पर कम से कम एक क्षमा याचना दें, तो कम से कम हम जैसे और हमारे बंधुगण के दिल में थोड़ी सी शांति की जगह बनेगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं ये आयोजन समिति और आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। उपस्थित गवर्नमेंट इन एग्जाइल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री चुक्योंग वांगचुक जी, जिनका पोंटा साहब से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, इनका बचपन और बहुत बहुमूल्य समय इसी पोंटा साहब में गुजरा, और हमारे बीच में उपस्थित करते इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष, फाउंडर, मेंबर और पोंटा साहब की बहुत बड़ी शख्सियत श्री मदन लाल खुराना जी, तिब्बतन यूथ कांग्रेस, तिब्बतन विमेन एसोसिएशन, भूपुर, स्तौन, पुरुवाला, कमरू सेटलमेंट से आए सभी मेंबरान, सेटलमेंट ऑफिसर, स्टाफ, सबसे पहले तो मैं अपने दिल से या एक भारतीय हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, मैं वो आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। लगभग हर भारतीय मेरी तरह दलाई लामा जी को उतना ही स्वीकार करता है, उतना ही उनका सम्मान करता है जितना आप लोग करते हैं। वो केवल तिब्बतन डिसपोरा के आपके समुदाय के कोई नेता या धर्मगुरु नहीं है, वो हमारी तरह आम भारतीयों की तरह पूरी दुनिया में और दुनिया के लगभग सभी देश, बशर्ते कोई 2-4 देश जो चीन के बहुत ज्यादा प्रभाव में हो, या कोई ऐसे देश जो चीन की नीतियों की खिलाफत ना कर पाए किसी मजबूरी से, उनको छोड़कर मेरे ख्याल इस दुनिया के जितने देश हैं, जितनी इस दुनिया के समुदाय हैं, जितनी इस दुनिया में धर्म है, वो परम पावन दलाई लामा जी को अपने धर्म गुरु के रूप में, एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में, एक टॉर्च बेरर के रूप में देखता है, महसूस करता है। हम भी इनकी उतनी पूजा करते हैं, उतनी सम्मान करते हैं जितना आप लोग करते हैं। तो निसंदेह अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठी या चीन की तरफ से एक शरारत, मैं इसको कहूंगा, साजिश कहूंगा, शरारत कहूंगा, और शरारतों का कोई ज्यादा समाज पे असर नहीं पड़ता, ये अगर चीन की शरारत है और उस शरारत का शिकार भारत के कुछ चैनल्स या अखबार भी अकारण भूलवश बन गए या उस चाल में फंस गए, लेकिन इससे हमारे जो स्नेह सम्मान परम पूज्य दलाई लामा जी के बारे में उस पर कोई भी फर्क ना पड़ा है, ना पड़ेगा। और हमारे भारतीय समाज में भी एक बच्चे के साथ प्यार करना, उस भावना को प्रकट करने के अनेकों तरीके हैं। अब कानून के हिसाब से तो अगर बात करें तो हम किसी बच्चे का कान नहीं खींच सकते, लेकिन जब कोई धर्म गुरु, घर में माँ बाप, हमारे यहाँ कोई मेहमान बच्चा आता है, हम कई बार प्यार से उसके कान भी खींचते हैं, तो कानून की परिभाषा में तो कान खींचना अपराध है। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार में जब एक बड़ा बुजुर्ग एक बच्चे के साथ अपना प्यार जताता है तो उसमें ये सभी उसके प्यार जताने के तरीके हैं, और इन तरीकों को कोई किताब में देख के या कैमरे की तरफ देख के डिसाइड नहीं कर सकता। ये तो इंस्टिंक्ट है इंसान की, जो एकदम कोई प्यार का प्रगटावा उस समय जो माहौल होता है एक बच्चे के और उनके बीच में जो एक अपनापन था, और इनसे तो पूरा हिंदुस्तान प्यार पाता है, इनको प्यार करता है। मेरा तो
जो ये मीडिया चैनल्स भी हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पाए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे विषयों पर, और ख़ास तौर पे ऐसे पुराने वीडियोस कहीं से उठकर आगे, इसमें संयम रखना चाहिए। इससे सभी की भावना आहत होती है, हो सकती है, और अगर थोड़ा सा संयम, चंद घंटे का संयम भी कोई न्यूज़ चैनल, अखबार थोड़ा सा एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर ले कि क्या ये विषय दिखाने लायक है कि नहीं है, तो शायद बाद में माफी मांगने की भी कभी जरूरत ना पड़े। माफियाँ भी क्यों मांगनी, अगर हम कोई ऐसा कार्य ही ना करें जिससे बाद में हमको भी पछतावा हो सकता है, जो न्यूज़ चैनल्स को भी पछतावा हो सकता है, जो उस अखबार को या जिन चंद अखबारों ने इसमें कोई प्रतिक्रिया दी है उनको भी पछतावा हो। तो थोड़ा सा संयम की बात है। अभी हमारे साथ तो आई बिलोंग टू सिख कम्युनिटी, हमारे साथ तो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। हमारी जो हाईएस्ट सीट है श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, वहाँ पर एक ऐसी घटना हो और उस वीडियोस को फटाफट वायरल कर दिया, और बाद में जब एक सच्चाई देखा गया तो वो भी पब्लिसिटी मॉन्गरी थी। एक महिला थी, अब टैटू वगैरह या एक अनफैशनेबल तरीके से हमारे टेम्पल्स में, गुरुद्वारा साहब में एंट्री में हो सकता है किसी दरबार ने या जो बाहर अटेंडेंट था उसने मना कर दिया, लेकिन मिनटों सेकंडों में उस बात का बतंगड़ बना दिया गया और बाद में सबको उस बात पे पछतावा हुआ। तो ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं कहता हूँ कि भगवान परमपिता दलाई लामा उन सबको भी माफ करे जिन्होंने ये गलती की है। चीन तो माफी के काबिल नहीं है, ना हम चीन को माफ कर सकते हैं, ना चीन कभी माफी के काबिल होगा, लेकिन जिन किन्हीं से भी हुई है भगवान उनके इस पाप को, उनकी इस गलती को माफ करे। और हमारा जो इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी या भारतीय समुदाय और तिब्बती समुदाय का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, अटूट रहे, पवित्र रहे, पावन रहे, और इसी तरह से परमपिता परमेश्वर पूज्य दलाई लामा जी को लंबी उम्र दे, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। इसी तरीके से धार्मिक सामाजिक तरीके से जिस तरह भी उनकी गाइडेंस भारतीय समाज को और इस पूरी दुनिया को मिलती रही है, वो हमको अभी और लंबे समय तक मिले, और भगवान आपको भी इसी तरह से शांति कायम रखने का बल प्रदान करें। आप जो तिब्बतन फ्रीडम मूवमेंट है, दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गांधीयन फिलॉसफी। महात्मा गांधी के बाद या भारत की आज़ादी में जो उनका एक फिलॉसफी थी कि किसी आंदोलन को, किसी स्वतंत्रता संग्राम को कैसे लड़ा जाए, अगर उसके बाद इस पूरी दुनिया में उस शांति के साथ अपनी इस आज़ादी और हक की लड़ाई को लड़ा, तो वो आपकी तिब्बती समुदाय ने लड़ा है। उसी शांति का आपने इसमें भी अनुसरण किया है। बहुत शब्दों को संकोच के साथ आपने इस्तेमाल किया। माननीय पूर्व मंत्री साहब ने भी बहुत अपनी भावनाओं को बहुत संयम के साथ, बहुत शिष्टाचार के साथ उसका आपने प्रकट किया है। तो ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे, परम पूज्य दलाई लामा जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, और किसी एक मीडिया या अखबार या कोई चीन की चाल के कारण हमारे सम्मान में इनके प्रति कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न पड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय तिब्बत। प्रभावित है इस समाचारों को सुन के और जो आज हो रहा है, लेकिन आप जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म गुरु के ऊपर अगर जरा सी भी किसी ने टिप्पणी की है तो गदर मच गया है। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं, आज देना तो नहीं चाहिए बधाई, लेकिन बधाई के पात्र हैं कि इतना शांतिपूर्ण माहौल, इतने शांतिपूर्ण तरीके से आपने अपनी बात को रखने की क्षमता है। आप बहुत बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। क्यों कि इससे बड़ा कोई आपके लिए भगवान हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। क्यों कि पूरे विश्व के अंदर जिस आदमी की आवाज सुनने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए लाइनें लगती हों, उस इंसान के ऊपर, और वो भी तब जब ये घटना 1 महीना पहले हुई, सब सोए हुए थे, मीडिया भी सोया हुआ था, लेकिन जैसे चाइना की तरफ से फंड्स आए, मैं सही मायने में बात करूंगा, जब पैसा मिला
तो मीडिया भी आंखें चौंधिया गई और पूज्य दलाई लामा जी के ऊपर इस तरह का लांछन लगाने की हिम्मत जुटा बैठे। अरे भूल गए वो 62 के दिनों को। आज हम जिस स्थिति में हैं, भूल गए उन क्षणों को जब हमने अपने संविधान में ये बात रख दी थी कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। बड़ा शर्म आती है, बहुत दुख होता है कि आज 4000 वर्ग किलोमीटर बिना किसी बात के, बिना किसी लड़ाई के चाइना ने हिंदुस्तान के कब्जा कर दिया। क्यों? ये चीजें जो हैं ये आगे चलकर और अग्नि का रूप ना का धारण कर लें। इसलिए मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे यहीं स्टॉप किया जाए, इसे बंद किया जाए। और जैसे अभी सब दीप्ति भाई और बहनों ने कहा है कि पूज्य दलाई लामा जी से माफी मांगे। वो धर्म गुरु हैं, दीप्तियों की नहीं, पूरे विश्व के लिए। जो इंसान इंसानियत के बारे में सोचता हो, जो इंसान शांति के लिए सोचता हो, और पंच तत्व के तो आप जानते हैं। और ये तो हिंदुस्तान की वो पवित्र धरती है जहां से पूज्य हमारे धर्म गुरु प्रकट हुए हैं। और वो तिब्बत में गए, चाइना में गए, और पूरे विश्व में जिन्होंने माननीय गौतम बुद्ध जी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया शांति का। और आज उसी चीज को लेके हर इंसान के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इनके लिए सब बराबर हैं। एक छोटी सी घटना के लिए इतना लंबा, इतना जद्दोजहद आज हमारे इन तिब्बती भाई और बहनों को, इन प्यारे बच्चों को जिस तरह से इन्होंने किया है, बात की है, ये तो मैं शुक्र मनाता हूँ उस परम पिता परमात्मा का। और पूज्य दलाई लामा जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपने बड़े शांति से इसे सहन किया है और आगे भी करेंगे। और साथ ही मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोबारा कितनी बार भी कहें उतनी कम है, क्योंकि माफ़ी मांगना सबसे बड़ी इज्जत है। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। अब पूज्य दलाई लामा जी ने तो उसी समय कह दिया था कि अगर किसी को मेरी बात से या इन बातों से अगर कोई चुभन हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो इसमें शर्म की बात नहीं है। जब हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी माफ़ी मांग सकते हैं तो हमारे मीडिया को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी चाइना जोर लगा ले, हमारे पूज्य दलाई लामा जी की उम्र और लंबी होगी और लंबी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भारत, जय तिब्बत। Tiring jik la dang ye tema dang la kal la tiring kan ta kan ro hindi ya ko pe chu chu jo kem pe ji ya ko kalok yak tha na mi ma ha ma ma so so khate pe tu a de pe yen go ni do tu ma la tere pe ya ko ka ji che te la shue mi hindi dong hindi na ya ko sing me hindi ya ko ma se non de tin ko yang और दो जी तो जी तो अभी हम सब ये प्रोग्राम जो है वो आज ख़त्म हो गया है। तो भाई लोग आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सबको पहुंचा दीजिए। और हम आपकी वजह से देखो पूरा कितनी भाई बहनों को NDTV न्यूज़ आपने कितना दुख पहुँचाया है। तो चलो ठीक है, तो ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। तो मेरा वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो अगले वीडियो में मिलता हूँ आप सबको। जय हिंद, जय तिब्बत, जय भारत, जय चलो।